Good morning, students. This is Pradhiman sir again in front of you, and today we are going to start our chapter number 1, that is evolution of computer. Okay, so basically, what is evolution of computer? As per the evolutions of man, the man is just being to suffer from many stages, and afterwards now the 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 species. Okay, now the species we are watching in front of our eyes is now Homo sapiens. So, as per the generation, as per the evolution of man, computer is also based on several. Sorry, a computer is also goes on several stages by which it just simply have a name of evolutions of computers. So basically there are five generations. Okay, first generation of computer, second generation of computer, third generation of computer, fourth generation of computer, and last fifth generation of computer. Okay, so here we goes about the learning of this chapter, that history of the computer, and after that generation of the computer, now early calculating device, that what are the calculating device using in the early age when there is not a single type of computer, and there is no such a calculating device. Okay, and after that characteristics and limitations of computer, that means a computer is about what are the simply characteristics, mean accuracy, reliability, and power, and other things. Okay, and after that the limitation, that it will not think about of its own, because of there is no intelligence. But nowadays the computer are coming with their AI features, means artificial intelligence, so that they can just simply give you an appropriate result to the user as per the need. Okay, so here we comes with every aspect of our life in the present era has been influenced by the most advanced machine known as computer. Initially, computer were used only by scientists and engineers for complex calculation and were very expensive. But nowadays computer can be affordable by small organization and even individual. यानी कि जैसे कि एक मनुष्य का जीवन है, वैसे ही कंप्यूटर भी कई प्रकार के स्टेजों से कहकर, कई प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरा है, जिसके कारण ये एक चैप्टर जिसका नाम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसी एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे. जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि कंप्यूटर इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन which can just simply run on electricity, and when you give it will process the data and give you the output. Okay, when you input something, when you give the instruction, when you give the command to the computer system or that particular device, it will process it, and afterwards it give the output to you, to the user. जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि जो कंप्यूटर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे, प्लस उनको सिर्फ जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स लोग जो और जो साइंटिस्ट लोग होते थे वही इस्तेमाल कर पाते थे. एक आम इंसान मीन्स जो एक जनरल पब्लिक होती थी वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते थे. ठीक है, और उनका इस्तेमाल सिर्फ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए होता था, जो कि सिर्फ इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट लोग ही उसका बेसिकली इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बिकॉज उनके ही फील्ड में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती. हमारे फील्ड में तो सिंपल कैलकुलेशन जस्ट लाइक टू ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट होता है. ओके, सो कंप्यूटर हैव नाउ बिकम अ बेसिक नेसेसिटी बिकॉज ऑफ देयर यूजेस एट आलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हम चाहे कहीं पर भी जाएं या कहीं पर भी हों, या इवन इन आवर पॉकेट देयर इज़ आल्सो अ कंप्यूटर इन आवर पॉकेट. ठीक है, आज हम चाहे कहीं पर भी जाएं, कुछ भी काम करें, कुछ भी काम ना करें, इवन हम अपने घर में भी हैं तो भी हमारे आसपास कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर चल रहा होता है या कंप्यूटर का यूज़ हो रहा होता है. ठीक है, बिकॉज उनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कंप्यूटर की, और जो उनकी अंदर जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है उस टेक्नोलॉजी की वजह से उनका यूजेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज के समय में आपको हर जगह ये कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे. नाउ कंप्यूटर आर यूज extensively in bank, hospital, media and entertainment industry, school, home, space technology and research,
रेलवे, एयरपोर्ट एंड सो ऑन। जैसा कि मैंने बताया था कि आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल दुनिया के हर एक जगह पर, हर एक कोने में, हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसा यहाँ पर दिया गया है कि सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर होते हैं उनका इस्तेमाल आपका बैंक में होता है, इसके बाद आपका हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा जब आप एंट्रेंस में ही एंटर करते हैं तो आपको कंप्यूटर का देखने को मिलता है। आफ्टर दैट जब सर्जरी होती है, इवन ऑल द वेंटिलेटर्स आर जस्ट सिंपली all the machines are just simply get connected with the computer system so that it will make a appropriate report of that patient, so that it is much more helpful for the doctors to get a particular to know the particular disease that the patient is suffering from। ओके, यानी कि किस बीमारी से वह इंसान या वह व्यक्ति या वह पेशेंट गुज़र रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको उस मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो सारी की सारी मशीन्स आपकी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होती हैं। वो उन सारी ही मशीनों से एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करती हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग को, मतलब उन डॉक्टरों को पता चलता है कि इस व्यक्ति को या इस मरीज़ को क्या बीमारी है। ठीक है, इसके बाद मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। मीडिया और बेसिकली और इंटरटेनमेंट में अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो आई डोंट थिंक सो कि मीडिया और इंटरटेनमेंट में कुछ खास ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उसमें भी आपको कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है, जैसे कि VFX हो गया आपका, ग्रीन स्क्रीन जो कि आप कहते हैं, जिसमें आज की डेट में एनिमेशंस ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर जो मूवीज़ बनती हैं वो आपकी एनिमेटेड होती हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादातर जो सीन होते हैं वो एनिमेटेड होते हैं, उनको रियलिटी में नहीं दिखाया जाता। अगर रियलिटी में अगर ऐसा होता तो शायद फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता। ठीक है, तो VFX की वजह से वो खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और VFX क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर के द्वारा ही कंप्लीट हो सकती है। नाउ इंडस्ट्रीज़, स्कूल्स एंड होम्स। ठीक है, अब आपने देखा स्कूल में तो आपके काफ़ी बड़ा एक लैब है ही। तो स्कूल में, हर स्कूलों में लैब होते हैं, कंप्यूटर लैब्स होते हैं, जहाँ पर 1, 2 या 3 नहीं, कई सारे कंप्यूटर रखे होते हैं जिन पर पर्टिकुलरली एक एक बच्चा करके बैठता है और उन पर वो अपना वो वर्क करता है जो कि उनको टीचर्स देते हैं। नाउ होम्स, हमारे घर में भी आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, बिकॉज आवर फादर माइट बी वर्क इन अ ऑफिस or work in bank or work in a some any industrial area or might be for any institute, so he has to just make their all desire all fulfill, so that so they just purchase a computer or a laptop, ठीक है, for itself। तो आपके पिताजी भी किसी न किसी, आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूर करता होगा। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आज की डेट में कंप्यूटर जो यूजेस ऑफ कंप्यूटर है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमें कंप्यूटर जो है वो एक एक्यूरेट कैलकुलेशन देकर करके बताता है कि वह चीज़ कितनी एक्यूरेसी के साथ हमें वो कंप्लीट करके दिखाता है। नाउ रेलवेज़, आपने रेलवेज़ में भी देखा होगा, अगर आपको रिजर्वेशन कराना है तो आप कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करेंगे। इवन अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको वो देखना है कि आपकी ट्रेन कहाँ पर है, लाइव जिसको बोलते हैं लाइव ट्रेन देखना है, लाइव ट्रेन स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो यू हैव टू जस्ट सिंपली चेक थ्रू वाया कंप्यूटर। ओके, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करके हम सर मोबाइल पर भी चेक करते हैं। तो मोबाइल भी बेसिकली एक कंप्यूटर ही है जिसको हम लोग सेकेंडरी नेम पाम टॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के बाद फिर लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है, जो डेस्कटॉप होता है वही सेम लैपटॉप होता है, बट लैपटॉप बस पोर्टेबल होता है जिसको हम कहीं पर भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। और जो पाम टॉप होता है वो बेसिकली लैपटॉप का भी एक छोटा वर्जन होता है जिसको हम लोग आसानी से पॉकेट में कैरी कर सकते हैं और आसानी से, मतलब बेसिकली वो हमारे कंप्यूटर जैसा ही होता है, लेकिन कंप्यूटर के जैसा होता है, कंप्यूटर नहीं होता। वो लगभग हमारे वो सारे काम कर सकता है जो कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि एक कंप्यूटर, बट लिटिल बिट क्वाइट सिमिलर टू द कंप्यूटर। ओके, सो नाउ इन एयरपोर्ट you can also search for airlines or get a reservation on the computer of
एयरलाइंस, ओके, एंड सो ऑन। कई जगहों पर कंप्यूटर का आज की डेट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी जो आपका बिल बनकर आएगा वो बेसिकली जो अगर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर आपका कंप्यूटर से ही बिल तैयार होकर आता है। इसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर, सॉरी, द टर्म कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, ओके। जो ये कंप्यूटर शब्द है वह आपके कंप्यूट वर्ड से डेराइव निकाला गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी कि जिसका मतलब होता है कि गणना करना, ठीक है, किसी चीज़ की गणना करना कि वह कितना, मतलब उसकी कैलकुलेशन करना एक प्रकार से, ठीक है। बट अ कंप्यूटर इज़ नॉट लिमिटेड टू परफॉर्म ओनली कैलकुलेशन। अ कंप्यूटर इज़ अ वर्सिटाइल डिवाइस दैट कैन हैंडल डिफरेंट एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। यानी कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए ही नहीं बना है, कंप्यूटर का काम और भी है। अगर आपको बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी चुटकियों में मदद करेगा और आपको एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा ताकि आप उसके ज़रिए सही से उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर केम इनटू एग्जिस्टेंस? क्या आपको पता है कि आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंप्यूटर हमारे जो लाइफ में किस तरह से एग्जिस्ट किया, किस तरह से उसने अपनी जगह बनाई। सो द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिवाइस। यानी कि पहले के ज़माने में जो कंप्यूटर आते थे और मतलब जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो थे वो आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बल्कि थे, मतलब देखने में भी नॉट सो स्मार्ट एंड नॉट सो फास्टर, नॉट सो चीप एंड नॉट सो गुड लुकिंग। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उनमें खामियां थी, ठीक है। लेकिन जो आजकल के कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं उनके मुकाबले, काफ़ी ज़्यादा हल्के, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, स्मार्ट एंड बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं गिना नहीं सकता आपको। सो नाउ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिवाइस दैट वर इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशन ओनली। यानी कि पहले की डिवाइस जो पहले के जो कंप्यूटर्स बनते थे उनमें बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती थी वही की जाती थी, इसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं हो सकता था। यानी कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है तो आप उस कंप्यूटर को खरीद सकते हैं, बकाया उसमें और कोई काम नहीं होता। यानी कि अगर आपको इंटरनेट चलाना, इंटरनेट तो पहले उस समय इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तो उस समय बेसिकली कंप्यूटर का सिर्फ काम ओनली कैलकुलेशन था। लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर का काम सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन के अलावा भी बेसिकली कंप्यूटर जो है वो कई सारे काम कर सकता है। ओके, नाउ लेट अस ग्लांस थ्रू द मेजर माइलस्टोन इन द जर्नी लीडिंग ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे कंप्यूटर। ओके, तो चलिए आपको हम इसी यात्रा पर लेकर चलते हैं जिस पर आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर किस तरह पहले दिखते थे और धीरे धीरे वो किस तरह से बदलते जा रहे हैं और आज की डेट में जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे हैं और फ्यूचर में जो कंप्यूटर्स आएंगे वो कैसे होंगे। सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। चलिए यहाँ पर हम कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का इतिहास जानते हैं। तो द नीड टू कीप ट्रैक ऑफ नंबर्स लीड टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट कैलकुलेटिंग डिवाइस। यानी कि जब जब हमें संख्याओं के साथ कुछ गणना यानी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी है तब तब एक डिवाइस का इन्वेंशन हुआ है और वही एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के तौर पर हम लोगों के सामने आई है। राइट फ्रॉम एबेकस, ओके, यानी कि एबेकस से स्टार्टिंग हुई और कहाँ तक, मैनी डिवाइस वर इन्वेंटेड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। यानी कि एबेकस से जो इन्वेंशन थी वो स्टार्ट हुई और आज के समय में लैपटॉप, पाम टॉप एंड मैनी मोर उसके थ्रू वो अब ये इन्वेंशन जो है वो जारी है और चल रही है अभी भी, ठीक है। अभी भी और भी खोजें हो रही हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। नाउ अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो कैसी थी और कैसी दिखती थी, उसका काम क्या होता था, क्या कहते थे उसको, वह कब इन्वेंट हुई, किसने इन्वेंट की और कहाँ इन्वेंट हुई, ठीक है। तो अबाउट 3000 BC, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो 3000 BC 3000 बिफोर क्राइस्ट पहले एबेकस नाम की एक डिवाइस को इन्वेंट किया था। तो एबेकस वाज फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस फॉर कैलकुलेशन डेवलप्ड इन चाइना। यानी कि सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वह एक एबेकस थी जिसको चाइना में डेवलप्ड किया गया था, ठीक है। इट वाज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम विद रॉड्स। यानी कि यह एक लकड़ी का फ्रेम था जिसमें रॉड्स लगी थी। यानी कि बेसिकली जो रॉड्स थी वो मेटल रॉड्स लगी हुई थी
जो बेसिकली हम लोग रॉड्स को सरिया बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। गोल गोल सरिया जो होते हैं वो बड़ी बड़ी जो रॉड्स होती हैं वो छड़, जिसको छड़ हिंदी में बेसिकली उसकी बेसिक हिंदी जो हो गई वो छड़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रॉड्स लेकर चलते हैं। तो वह एक लकड़ी का ढांचा फ्रेम हुआ करता था और उसमें बीच में कई सारी मेटल रॉड्स होती थी और हर रॉड में इक्वल अमाउंट ऑफ बीड्स, यानी कि जो छोटे छोटे यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के बीड्स दिख रहे हैं वो आपके उसमें लगे होते थे। माइट भी ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लैक ही हो, वो हो सकते हैं कि अदर और भी कोई कलर्स के हो सकते हैं, लेकिन वो कलर्स जो है वो अपनी अपनी एक वैल्यू रखते थे, ठीक है। सपोज़ अगर रेड कलर का है तो दो उसकी जो वैल्यू है वो 2 हो गई, अगर ग्रीन है तो 3 हो गई। अब वो डिपेंड करता है उनकी वैल्यू के ऊपर। जब आप किसी भी इस टाइप की एबाकस को आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर उसमें एक नोटिफिकेशन या फिर आप परचेजिंग जो नोटिस होता है वो आपको मिलेगा, उसमें आपको वो हर एक वीड की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है। नाउ द फ्रेम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब यहाँ पर जो फ्रेम होता था वह 2 भागों में बटा होता था, जिसको ऊपर वाले को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हेवन कहते थे और जो नीचे वाला भाग है इसको अर्थ कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हेवन का मतलब क्या होता है आप सभी जानते ही होंगे। हेवन मतलब स्वर्ग होता है और अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन यहाँ पर एबाकस में ऊपर वाले हिस्से को हेवन बोलते थे और नीचे वाले हिस्से को अर्थ बोलते थे। नाउ ईच रॉड इन द हेवन हैज़ 2 बीड, यानी कि जो हेवन यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता था उसमें सभी में 2-2 बीड्स होती थी और जो नीचे एंड ईच रॉड इन द अर्थ हैज़ 5 बीड्स, यानी कि जो नीचे अर्थ जो सेक्शन था उसमें 5-5 बीड्स होती थी, ओके। सो नाउ इट इज़ यूज फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिकली इसका इस्तेमाल सिर्फ जो एबाकस था उसका बेसिकली इस्तेमाल जो होता था वो सिर्फ एडिशन के लिए, डिवाइड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। इसके बाद दिया गया पास्कल्स कैलकुलेटर। अब यहाँ पर पास्कल्स कैलकुलेटर दिया गया है जिसको आपके यहाँ पर दिया गया है बेस पास्कल, जिनको जो इसके इन्वेंटर हैं, ठीक है। आपके पास्कल्स कैलकुलेटर के जो इन्वेंटर हैं उनका नाम है ब्लेस पास्कल सॉरी। अ फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्वेंटेड एन एडिंग मशीन कॉल्ड पास्कल्स कैलकुलेटर और पास्कलाइन, यानी ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो गणितज्ञ जिसको बोलते हैं, जो गणित में रुचि रखता है और गणित की कई नई चीज़ों को खोज करता है, तो मैथमेटिशियन थे ये, जिन्होंने इस पास्कलाइन या बोल लो कि पास्कल्स कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया था एट द एज ऑफ 19। मतलब ये जब 19 साल के 19 उम्र के थे, 19 साल के थे बेसिकली। जब मैं 19 साल का था तो मैं घूमने फिरने में ज़्यादा मुझे मन लगता था और मैं सोचता था मैं आज यहाँ घूमने जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, और इन्होंने 19 साल की उम्र में एक मशीन बनाई जो कि कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है। और वो है टाइम क्या था, सॉरी वो ईयर कौन सा था, 1642, यानी 1642 में इन्होंने, जब ये 19 साल के थे, ब्लेस पास्कल जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई। और मैं उस समय में जब मैं 19 साल का था, ठीक है, तो मैं सिवाय घूमने फिरने के और यहाँ वहाँ जाने के मेरे पास और कोई काम नहीं था, ठीक है। तो आई थिंक ही इज़ मच बेटर देन मी, ओके। सो इट यूज गियर, व्हील एंड डायल, यानी इसमें गियर, व्हील्स और डायल्स का इस्तेमाल होता था जिसके ज़रिए कैलकुलेशन होती थी। नंबर वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स। इट वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीन्स आपको खाली यहाँ पर साइन चूज़ करना है और आपको जो डायल दिया गया डायलर, आप उस डायलर को आप रोटेट करिए, ठीक है। तो जैसे ही गियर चेंज होता जाएगा उसकी वैल्यू आपको एज अ आउटपुट शो होती जाएगी, ठीक है। तो द गियर प्रिंसिपल वाज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स। टैक्सीमीटर इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर, यानी कि आपने कई जगहों पर देखा होगा जो टैक्सीमीटर्स होते हैं वो बेसिकली इसी पर वर्क करते हैं, यानी कि वो आपके पर किलोमीटर के हिसाब से आपका जो रुपए होता है उसको दिखाते हैं, यानी कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है और उसी का वो मल्टीप्लाई कर देते हैं
पर किलोमीटर के रुपए के हिसाब से। सपोज़ अगर 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चल रही है और गाड़ी अगर 100 किलोमीटर चली तो आपका कितना रुपये हो गया, 100 रुपये हो गए, ठीक है। बेसिकली इतना तो कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है किराया, 100 किलोमीटर का तो किराया काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं ये एक अपनी बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ जिसके थ्रू इनका जो ये पास्कलाइन और जो पास्कल्स कैलकुलेटर था वो वर्क करता था, ठीक है। यहाँ पर आप फ़ोटो देख सकते हैं पास्कलाइन की, ये रही, ये फ़ोटो है बेसिकली। ना इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइबनिज़ कंप्यूटर की, सॉरी लाइबनिज़ कैलकुलेटर की। तो लाइबनिज़ द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन इम्प्रूव द पास्कलाइन मशीन इन 1671। लाइबनिज़ कैलकुलेटर वाज एन मैकेनिकल डिवाइस, यानी कि लाइबनिज़ जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन, यानी कि ये जर्मन से थे, जो एक जर्मनी एक जो देश है वहाँ से थे ये, और ये भी एक गणितज्ञ थे जिन्होंने पास्कल मशीन को इम्प्रूव किया। एंड 1671 में इन्होंने एक लाइबनिज़ कंप्यूटर का जो एक मैकेनिकल डिवाइस है उसका इन्वेंशन किया। यहाँ पर उसकी फ़ोटो दी गई है, आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, द लाइबनिज़ कैलकुलेटर कुड इवन डू मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड फाइंड स्क्वायर रूट्स। वाओ, क्वाइट इम्प्रेसिव। यानी कि अब इनका जो ये जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो ना सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था बल्कि डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करता था, प्लस वो नंबर्स का स्क्वायर भी बताता था। यानी कि उस नंबर का उस पर्टिकुलर नंबर, सपोज जैसे अगर आपने 2 फीड किया तो 2 का स्क्वायर वहाँ पर 4, ठीक है। अगर आपने 8 डाला तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। वेरी गुड, अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो बेटा स्क्वायर रूट लर्न कर लो, ठीक है, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आने वाले हैं। नाउ यहाँ पर एक और हेडिंग दी गई है, दैट इज़ डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में बताया गया है। चार्ल्स बेबेज, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, इज कंसीडर एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ही इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल of mechanical computer, okay, called the difference engine in 1822 and the analytical engine in 1833। यानी कि चार्ल्स बेबेज, जिनको हम लोग आज की डेट में फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन हैं, ये भी गणितज्ञ हैं ब्रिटिश से, और जिन्होंने एक मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज की थी जो कि एक डिफरेंस इंजन था, ठीक है। और ये किस ईयर में उन्होंने इन्वेंट किया था, 1822 में। और जो एनालिटिकल इंजन था वो आपका 1833 में इन्होंने इन्वेंट किया था। द एनालिटिकल इंजन हैड 5 यूनिट। अब इसमें 5 भाग थे, कौन कौन से, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। यानी कि यहाँ पर आपको 5 चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ती थी, इनपुट भी, आउटपुट भी, स्टोर करना पड़ता था क्योंकि डाटा है तो स्टोर तो करना ही पड़ेगा, मिल और कंट्रोल, जो कि आपके आगे यहाँ पर बताए गए हैं। सो यहाँ पर दिया गया है, दीज यूनिट वर्क लाइक अ मॉडर्न कंप्यूटर, ऑल द कंप्यूटर विच आर यूज नाउ डे आर बेस्ड ऑन इट। यानी कि आज के समय में जितने भी हम लोग कंप्यूटर देखते हैं वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। यानी कि सबसे पहले उसमें इनपुट डिवाइस लगाना पड़ता है, आउटपुट डिवाइस भी लगाना पड़ता है, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके, ठीक है। बेसिकली अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में कुछ इनपुट फीड करते हैं ताकि कंप्यूटर जो है उस इनपुट को फीड कर सके और उस फीडबैक को लेकर उस पर प्रोसेस कर सके, ठीक है। और जैसे ही वो उस पर प्रोसेस करता है वो क्या करता है, वो उसका आउटपुट आपको आउटपुट डिवाइस पर दिखा देता है, ठीक है। सपोज़ आपने अगर अपने कंप्यूटर में आपको कोई पिक्चर बनानी है तो आपने पिक्चर बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, माउस का। आप माउस के थ्रू या फिर आप लाइट पेन के थ्रू भी जो पिक्चर्स हैं, जो पेंटिंग है वो आप बना सकते हैं। जैसे ही आपकी पेंटिंग तैयार हो जाएगी अब आपको उसको प्रिंट करना है, क्योंकि आपको वो अपने टीचर्स को, अपने बड़े जो घर में आपके बड़े लोग हैं, आपको उनको दिखाना कि ये चीज़ कैसी बनी है। तो उसके लिए क्या करोगे, क्या आप कंप्यूटर लेकर चले जाओगे ना, ऐसा तो है नहीं। तो आप उसके लिए उस पर्टिकुलर पेंटिंग को प्रिंट करोगे। तो प्रिंट करने के लिए बेसिकली क्या लगता है, कौन सा आउटपुट डिवाइस लगती है, वो होती है प्रिंटर, ओके। तो जब प्रिंटर आप लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप Ctrl+P और एंटर दबाएंगे तो आपकी जो पेंटिंग है वो प्रिंट होकर बाहर आपके एक पेपर पर प्रिंट होकर निकल आएगी, और आप उस पेपर को, जो हार्ड कॉपी है, आप उसको बेसिकली आप सबको दिखा पाएंगे कि ये मैंने पेंटिंग की है आज और इस तरह की है।
सभी लोग देखेंगे और उसको बताएंगे कि वो अच्छी बनी है, बहुत अच्छी है, या और थोड़ा सा इम्प्रूव चाहिए आपको। ठीक है। नाउ स्टोर वाज यूज फॉर स्टोरिंग द डाटा एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने बताया था कि जो स्टोर होता है वो आज की डेट में स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो उसका काम सिर्फ इतना होता था कि वो डाटा को स्टोर करता था। और मिल वाज द कैलकुलेटिंग यूनिट, यानी जो मिल होता था वो आपकी कैलकुलेट करता था। उसका काम सिर्फ इतना होता था कि जो भी आपने कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम्स आपने फीड करी हैं उसको वो क्या करता था, सॉल्व कर करके आपको दिखाता था, उसका आउटपुट आपकी स्क्रीन पर दिखाता था। नाउ कंट्रोल यूनिट वाज यूज फॉर सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट, यानी कि ये कंट्रोल यूनिट जो होती थी वो बेसिकली जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स होते हैं उस पर ध्यान देती थी कि क्या सारे ही पार्ट्स जो हैं वो बेसिकली सही से काम कर रहे हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो जो कंट्रोल यूनिट होता था वो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता था। तो कंट्रोल यूनिट का काम बेसिकली सिर्फ इतना ही था। ओके, now these are the next topic which I further resume in the next video, so stay tuned with it. Goodbye.